वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स आई थिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है। उस लेक्चर्स में आपने क्या देखा कि ये EMI होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने बताया आपको व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट मीन्स द इंड्यूस ऑफ द वोल्टेज और द करंट inside the conductor by the effect of external magnetic field। बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपका करंट इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, दैट इज़ नॉट कंपलसरी, है ना। कंपलसरी क्या है दैट योर EMF इज डिपेंड ऑन फ्लक्स चेंज, ठीक है ना। फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करता है and not only the flux change, it depends on the rate of flux change, है ना। E is proportional to d phi by dt, है ना। तो your EMF depends on rate of flux change, not only the flux change। and the flux, what do you mean by the flux? Flux, as we have explained, that it is the dot product of magnetic field and the area vector, and we can explain it by the BA cos theta। it means your flux depends on the magnetic field, your area and the orientation of the surface or the magnetic field। it means your angle, that is the cos theta। cos theta depends, theta is what? Theta is the angle between the magnetic field and the area vector। so in any case your magnetic field is changing, your area is changing, or the orientation, it means your angle between the magnetic field and the area is changing, in that case your flux will change। and your EMF not depends only about your flux change, it depends on the rate of flux change। it means how fast and how slow your flux is changing with respect to time, that's the EMF induced in the conductor। so the EMF induced in the conductor or the current induced in the conductor, that depends on the rate of flux change। it means the rate of flux change, it means how the flux is changing with respect to time, that will decide your EMF or the current induced in the conductor when the conductor is placed inside the magnetic field। so your EMF will depends on the flux change, and the flux will depends on the magnetic field, on the area and on the angle। it depends that your magnetic field may be increase or decrease, in both case your flux will change, either magnetic field will increase or decrease, because it depends on change, not about the magnitude, it is increasing or decreasing, it depends that is it changing, is it increasing or decreasing, that depends। it means your magnetic field जो होगा आपका वो increase करे या decrease करे, in both case your flux will change। कितना फास्ट इंक्रीज करेगा, कितना स्लो इंक्रीज करेगा, उसके रेट पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर आपका एरिया में किसी को कंप्रेस कर दूं सरफेस को, या इसको एक्सपैंड करूं, है ना, श्रिंक करूं या एक्सपैंड करूं, है ना, इन बोथ केस योर एरिया इज चेंजिंग। अगर आप एरिया चेंज कर रहे हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स क्या, आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एरिया से क्रॉस करेंगे, तो कितना ज़्यादा एरिया मिल रहा है उसको, कितना कम एरिया मिल रहा है, हाँ, बट चेंज होते रहना चाहिए आपको। देयर शुड बी चेंज इन द एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है ना। अगर आप रोटेट कर रहे हो किसी कंडक्टर को, ठीक है ना, तो आपका डेफिनेटली उसमें जो एंगल है वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इन 3 केसेस में फ्लक्स जिस पे डिपेंड करता है, लाइक योर मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड ओरिएंटेशन, दैट इज द थीटा बिटवीन द magnetic field and the area is changing, then definitely your flux will change। and EMF not depends only on the flux change, it depends how fast it is changing, it means the rate of change of flux, ठीक है। तो ये बताया था किसने, फैराडेज ने 2 लॉ दिए, है ना, कि हाँ अगर आप फ्लक्स में चेंज कर रहे हो, है ना, फ्लक्स में चेंज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज या करंट, ठीक है, वोल्टेज या करंट, ठीक है, किसमें, कंडक्टर में, ठीक है। ये बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ ने। सेकंड लॉ ने बताया था कि हाँ EMF जो इंड्यूस होगा वो क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू
योर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा। और जब आपको EMF पता है तो डेफिनेटली आपको करंट भी पता होगा, एंड करंट क्या होता है आपका वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इट मीन्स क्या 1/R इंटू, इसको मैंने दो टाइप से बताया था, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और I विल बी 1/R इंटू डी फाइव बाई डी टी, है ना। इफ़ योर फ्लक्स इज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना, flux is variable quantity and depends on the time. In this case you will take the d phi by dt and it is the constant but changes with respect to time, है ना। then you will take the difference it means the slot of the time पे जो defined हो, that is called the difference, and जो continuous हो, everywhere it is changing, then we have to differentiate, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशिएशन एंड द डिफरेंस विल गिव यू द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, एंड योर continuous value differentiation that will give you the instantaneous value of the current or voltage. Okay, that's clear. तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रखे थे अभी तक, ठीक है, और आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ, ठीक है, कि लेंज लॉ क्या बताएगा। देखो अभी तक हमने क्या देखा, और ये जो फ्राइडेज लॉ था उसने में क्या दिया, ठीक है। फ्राइडेज लॉ ने, देखो फ्राइडेज लॉ ने बताया कि हाँ, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आप कंडक्टर रखते हो कुछ, ठीक है, कंडक्टर रखते हो, कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, कंडक्टर है, तो अगर मैं इसमें चेंज करूं मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर मान लो फ्लक्स में चेंज करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट होगा और इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट लॉ, है ना, ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था कि जो अमाउंट होगा, है ना, अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज वो प्रोपोर्शनल होगा क्या, डी फाइव बाई डी टी का। इट मीन्स क्या जो फ्लक्स चेंज का रेट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द इंड्यूस्ड वोल्टेज। ये बताया किसने, फ्राइडेज ने। ये था आपका फर्स्ट लॉ कि हाँ इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स चेंज। और फ्लक्स चेंज मतलब क्या, योर मैग्नेटिक फील्ड, योर एरिया, योर ओरिएंटेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। ये था आपका सेकेंड लॉ, ठीक है। अब सुनो, इसने बताया फ्राइडेज ने कि हाँ वोल्टेज इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, बट करंट और वोल्टेज मतलब ये तो नहीं होता बस करंट इंड्यूस हो गया, वोल्टेज इंड्यूस हो गया, उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा आपको, है ना। अगर वोल्टेज है तो बताना पड़ेगा कि किधर पॉलरिटी प्लस होगा, किधर पॉलरिटी माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 वोल्ट, दिस इज नॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, you have to tell me that which potential is positive, which potential is negative. This is the complete information. Similarly for the current, if you are telling me that it is the 5 ampere, then you must have to give me the information which is the direction. So without the direction and the polarity, the information is incomplete, है ना। तो इसका जो complete information था इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज का, है ना, कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो किसने बताया, लेंज लॉ ने। लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया क्या कि यस देयर विल बी इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट इनसाइड द कंडक्टर व्हेन वी चेंज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और द एरिया, डेफिनेटली द फ्लक्स, बट द डायरेक्शन ऑफ द EMF और द करंट विल बी गिवन बाय द दिस लॉ, दैट इज द लेंज लॉ। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लेंज लॉ है क्या, है ना, एंड व्हाई इट कम्स इन द पिक्चर, बिकॉज the information about the induced EMF और voltage was the incomplete, हाँ, तो उसको कंप्लीट किसने किया, लेंज लॉ ने। लेंज लॉ ने बताया कि हाँ डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, है ना। अभी तक आपने देख लिया कि चलो ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि यस E इज प्रोपोर्शनल टू योर डी फाइव बाई डी टी और डेल्टा फाइव बाई डी टी, है ना, बट व्हाट विल द डायरेक्शन, इट विल गिवन बाय द लेंस। ओके, सो वी विल डिस्कस द लेंज लॉ नाउ। लेंज लॉ बड़ा अच्छा लॉ है है ना, बड़ा प्यारा सा लॉ है, और इसको देखते हैं हम लोग, है ना, कि लेंज लॉ है क्या। अब सुनो, लेंज लॉ के बारे में आप स्टेटमेंट लिखो।
the amount of induced EMF is always such that it opposes the cause producing it. ठीक है, बड़ा अच्छा लॉ था। इसमें क्या बोलता है ना कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होता है कि जो जिसने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसी को अपोज करेगा। इसको हम लोग और बोलते हैं, है ना, सन किल्स फादर, ठीक है, या सन अपोजेस फादर। जैसे आप देखे होंगे जो हमारे मुग़ल एम्पायर था, ठीक है, उसमें आप देखे होंगे मैक्सिमम, है ना, जैसे मान लो अकबर भी था, तो अकबर आप देखे होंगे मुग़ल आज़म मूवी, है ना, उसने अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट किया था। मूवी में दिखाया था कि नहीं, उसने अनारकली के कारण किया था, बट रीज़न क्या आई डोंट नो कि अनारकली रीज़न थी या फिर रीज़न ये था ना कि उसका जो फादर था उसको चाहता था कि नहीं मैं उसको डिथ्रोन कर दूं, है ना, उसको मैं राजा नहीं बनाऊं। तो मेनली रीज़न ये था आपका, है ना। तो ये मुस्लिम एम्पायर में आपको बहुत सारे रीजन्स मिल जाएंगे, मुग़ल एम्पायर्स में, जिसमें आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, है ना, कि जो सन होता है ऑलवेज अपोज द फादर, ठीक है, जिसने जिसको पैदा किया वो उसी को अपोज कर रहा है। दिस इज़ द लॉ, इसी को हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं, ठीक है। कि लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिसने आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किया, ठीक है, जिसने इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट किया, ठीक है, ये उसी को अपोज करेगा। तो जनरली इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन देता है ना, ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है? ड्यू टू द फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स ने जनरेट किया, फ्लक्स के कारण जनरेट हुआ कौन सा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस टाइप से जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट में बोल सकता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन या फिर इस करंट का जो ईएमएफ का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन इस टाइप से होता है ना, कि जब ये जनरेट होगा तो जिसने इस फ्लक्स ने इसको जनरेट किया, ये इसी को अपोज करता है, ठीक है ना। ये जो करंट होगा वो ये जो करंट आपका या वोल्टेज होगा, है ना, वो इसको अपोज करेगा, इस फ्लक्स को, ठीक है। और फ्लक्स जनरली आता कहाँ से है? तो मैग्नेटिक फील्ड से। फ्लक्स कहाँ से आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो बेसिकली क्या, आप ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा आपको। इस मैग्नेटिक फील्ड ने जनरेट किया फ्लक्स को, फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स चेंज होता रहा, ठीक है। मैं ऐसा लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ने जनरेट किया किसको? फ्लक्स को, ठीक है। और फ्लक्स चेंज ने जनरेट किया किसको? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को। और जब ये जनरेट हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, तो ये क्या करता है? ये अपने आप को डायरेक्शन इस टाइप से सेट करता है, अपनी डायरेक्शन इस टाइप से सेट करता है, ठीक है, कि जिसने इसको जनरेट किया उसको ये अपोज करता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग रहा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से ये चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का ऐसा हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका काम बस एक ही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का ऐसा ही है कि अच्छा आप मर रहे हो, मैं आपको जिंदा कर दूंगा, आप जिंदा हो, मैं आपको मार दूंगा, ठीक है। इट ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ये करंट क्या करेगा? उसको डिक्रीज कराएगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसको इंक्रीज कराएगा। समझ में आ रही है क्या बात? इसका काम यही है कि मैं आपको अपोज करूंगा। आप जाओगे नॉर्थ तो मैं जाऊंगा साउथ, आप जाओगे साउथ तो मैं जाऊंगा नॉर्थ, है ना। आई विल जस्ट अपोज यू, ठीक है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द ईएमएफ और द करंट दैट इज इंड्यूस्ड, है ना। तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आया। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन इस टाइप से आपको सेट करना है ना, कि ये हमेशा अपोज करे किसको? इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को, या जिसके कारण ये जनरेट हुआ,
ठीक है, तो इसका टारगेट क्या है, बस अपोज करना है। आप डिक्रीज कर रहे हो तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आप इंक्रीज करो, आप इंक्रीज कर रहे हो तो मैं ऐसा कुछ करूँगा आप डिक्रीज करो। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो क्या है आपका, सन किल्स फादर। ठीक है, जिसने जिसको पैदा किया उसी को ही अपोज कर रहा है। दिस इज द लॉ, यही आपका लेंज लॉ। ठीक है, जो मुगल एम्पायर में आपको इजी दिखेगा, है ना। शायद औरंगजेब ने अपने फादर को ताजमहल के अंदर कैद कर लिया था, है ना, या बहुत सारा चीज़। एक हिंदू मतलब अपने धर्म में भी है, जस्ट लाइक योर कंस ने अपने फादर को कर दिया था, ठीक है, जेल में डाल दिया था क्योंकि वो किसी और को राजा ना बनाए। तो ये हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कि ऑलवेज फादर किल्स सन किल्स फादर। ठीक है, तो दिस इज द लेंस लॉ। आई होप आप समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, है ना, लेंस लॉ को समझने के लिए। एग्जाम्पल है ना, डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आपने रखा क्या है, एक कंडक्टर, एक कॉइल रख दिया। ठीक है, ये क्या है आपका कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, वेरिएबल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, वेरिएबल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है इस एरिया में, इसमें हमने क्या किया, एक फाइनाइट शेप का कॉइल रख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है ना। एरिया क्या हो गया इस केस में, कांस्टेंट। ठीक है, थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना। तो बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं इंक्रीज करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करने से आपको पता है ना, कि हमेशा इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा। और इंड्यूस्ड वोल्टेज जब भी आएगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, अब सुनो, करंट, अगर करंट का डायरेक्शन मैं इधर से इधर ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या, करंट ऑलवेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आप करंट के बारे में बात कर रहे हो, इट मीन्स क्या, ऑलरेडी आप वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हो, ऑलरेडी आप करंट के बारे में बात कर रहे हो, है ना। पता ना, अगर आपके पास सोर्स है, मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, तो करंट हमेशा किससे निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एंड किधर करता है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ है, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो अगर आपको एक का डायरेक्शन पता है, दूसरे का भी डायरेक्शन पता है आपको। ठीक है, इस पर ज़्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेते, हम लोग बात करेंगे ओनली अबाउट द इंड्यूस्ड करंट के बारे में भी। ठीक है, कि इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। दिस इज द एग्जांपल फर्स्ट। अब सुनो, ये जो इंड्यूस्ड करंट आया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें इस कॉइल में करंट इंड्यूस करेगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। दिस यूर चेंजिंग। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है ना, तो फ्लक्स चेंज कर गया, और फ्लक्स चेंज करेगा तो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा, है ना। अब ये करंट का काम क्या है, इस करंट का काम है कि जिसने इसको जनरेट किया उसको आप डिक्रीज करो। ठीक है, तो इसको किसने जनरेट किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये इसका फादर रहा। ये इसका काम क्या रहेगा, इट ऑलवेज अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है,
तो ये कुछ अपने आप का डायरेक्शन इस टाइप से सेट करेगा कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। ठीक है, अब सुनो, अगर इस कॉइल में ठीक है करंट आप लोगे क्लॉकवाइज, इधर मैं ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो अगर ये क्लॉकवाइज होगा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ड्यू टू द कॉइल। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल क्या होगा इस डायरेक्शन में, बी ड्यू टू कॉइल का। ठीक है, और ये क्या है आपका बी ड्यू टू कॉइल। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, इसका काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको अब डिक्रीज करना है। देखो आप इधर +5 जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी +5 है अंदर की तरफ। ठीक है, और कोई आपका दुश्मन है तो क्या चाहे आपकी वेलोसिटी क्या होगा, आपको खींचेगा। ठीक है, आपको अपोज करेगा। तो ये अपना करंट इस टाइप से सेट करेगा ताकि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो ड्यू टू दिस कॉइल वो क्या हो, इसको अपोज करे। ठीक है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी वैल्यू रहा होगा इसने अपना करंट इस टाइप से सेट किया ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो किधर हो, बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसको इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। अंदर की तरफ क्या होगा आपका 50 टेस्ला, तो इसने जनरेट किया मान लो 20 टेस्ला किधर, बाहर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया 30 टेस्ला, डिक्रीज किया ना। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा, जो इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करना। अगर ये डिक्रीज करता रहता है अंदर की तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इस टाइप से सेट करेगा अपने आप को कि ये इंक्रीज कर जाए। ऑलवेज अपोज करना है। ठीक है, बात समझ में आई है ना। आई थिंक आप देखो, आई होप क्लियर हो गया होगा।